सो द फॉन इज द यंग वन ऑफ डियर, डियर का जो बच्चा होता है उसको फॉन कहते हैं। और ये जो लेसन है, यू कैन सी दिस बॉय, ये जोडी है और इसका फॉन है, एक फेमस प्ले है, उसके ऊपर पिक्चर भी निकली है, वीडियोस भी निकले हैं। और इस पर ये जो जो स्टोरी दी है हमारी लेसन में, जो जोडिस फॉन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ बॉय एंड बेबी डियर। बेबी डियर को जिसको हम फॉन कहते हैं, उसके लव के बारे में है, प्यार के बारे में है ना। तो ये जोडीज फॉन जो है, जोडी is the name of this boy. This story is written by very famous writer M.K. Rawlings. Okay, now who this author is? She is actually, she is a, you can see, writer is a female. Her complete name is Marjorie Kingdom Rawlings. M.K. Rawling is the name of the writer. Okay, let's see what is, or let's learn something about her, who this author is. See, M.K. Rowling, she was born in 1896 and she died in 1953. She was American novelist whose works explore the need for human to live in harmony with the natural environment. जो भी उसने लिखा है, whatever books she has written, novels and other things, it shows in that novel she urges the humans. Urge means request the human being. For what? To live in harmony. Harmony means प्यार से, with peace, with friendship, with the natural environment है. Natural environment में flora and fauna आता है, animals आते हैं, वनस्पति आते हैं, उनके साथ हार्मनी के साथ रहने की अपील करती है, रिक्वेस्ट करती है ह्यूमन बीइंग्स को in her books. Her books reflect her love of the land. Reflect her love of the land. Land means where she was born. जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसके बारे में उसका प्यार उसके बुक्स में, राइटिंग में दिखता है. एंड पर्टिकुलरली द लैंड एंड पीपल ऑफ नॉर्थ सेंट्रल फ्लोरिडा. फ्लोरिडा इज द प्लेस इन अमेरिका. And in most of her books, she writes about the people and about the land area of north of central Florida. Okay. In 1939, Rowling was awarded the Pulitzer Prize for Fiction for her young adult novel, The Yearling. ये जो उसको एक बहुत रेप्यूटेड अवार्ड मिला है. कौन सा अवार्ड है वो? ये पुलिट्जर प्राइज. हाँ. For which book? For Yearling. And this book was published in the year 1938. ये जो बुक है Yearling, इसी बुक से ये स्टोरी ली हुई है. छोटा सा हिस्सा उस बुक का इज टेकन इन दिस लेसन. वो उसी बुक का है, Yearling का, जो बुक 1938 में पब्लिश हुई थी. द पॉपुलर एंड क्रिटिकल सक्सेस ऑफ विच मेड हर वन ऑफ द मोस्ट बिलवर्ड अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर. सी इज वन ऑफ द मोस्ट loved, liked American children's author. अमेरिकन में जो चिल्ड्रंस है, बच्चों के ऑथर करके उनको पहचाना जाता है. Because she has written about the animals, she has written about natural environments. Okay, and she is also the winner of that prestigious award. Okay, next. और पढ़ेंगे उनके बारे में. She was born where? Let's see. She was born M.K. in मतलब the authors, Marjorie Kingdom in Washington. After her father died in 1913, she moved with her mother and brother to Madison Square. हमने लास्ट ईयर 7th में एक लेसन पढ़ा था, याद है आपको? मैडिसन स्क्वायर. किसी को याद है क्या 7th क्लास का लेसन? एक हाँ सर. ऑर्फन बच्चा रहता है वो मैडिसन स्क्वायर में. yes, sir, yes. क्या नाम था उस लड़के का? The Cop and Anthem, the lesson, do you remember? वो मैडिसन स्क्वायर वाला Cop and Anthem. Yes, sir. Okay. So where she soon enrolled at the University of Wisconsin, graduating in 1918 with ABA degree in English. The next year, she married fellow writer Charles Rowling
and moved with him to Rochester, New York, where she worked as a newspaper writer. In 1928, Rowling purchased an orange grove matlab garden, in Cross Creek, Florida, where she and her husband subsequently moved to restore the farm to working condition. वहां पे उन्होंने garden develop किया. Okay. After divorcing her husband in 1933, Rowling stayed in Cross Greek. She married North Sandor Baskin second time, a restaurant hotel operator in 19. इतना चीजें आपने को याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको दो ही चीजें याद रखना है. She was a children's writer. She was the winner of that award, and she is also known for. She is also loved and respected as a children's writer. Okay, that is the main important thing about. And also you have to remember that in books she has written about the love of nature, the animals, and she appealed the people, she requests the people to live in harmony with the nature. This thing you have to remember about this author. And ये जो lesson है, this lesson is taken from the famous novel. What is the name of that famous novel? This one. कहा गया? Yearling. The Yearling is the very famous novel, और इसी में से ये स्टोरी ली हुई है, और वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी है. दिस स्टोरी इज अबाउट, नाउ व्हाट इज इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में आप क्या है एक्चुअली, आपने वो कल देखा होगा. यू कैन सी हियर ऑन द पिक्चर. व्हाट इज दिस स्नेक? स्नेक कौन, व्हाट काइंड ऑफ स्नेक इज दिस? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्नेक? रैटल स्नेक. आपने एक 6th क्लास में एक लेसन था हमारा, डेजर्ट एनिमल. उसमें ये जो उसका पूंछ होता है, ये देखिए, ये पूंछ होती है, ये रैटल करता है, शेक करता है, इसका आवाज निकलता है. और ये दिस स्नेक इज वेरी डेडली पॉइजनस, बहुत पॉइजनस होता है. सबसे तो पहले तो वो क्या करता है, ये अपनी जो पूंछ होती है उसको हिला के वार्न करता है प्रेडेटर्स को कि यहाँ से चले जाओ, आई एम हियर. एंड इफ यू डू नॉट लिसन टू हिज वार्निंग, ही विल अटैक यू. ही इज वेरी 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 पॉइजनस. तो ये स्टोरी इसी बारे में है. क्या होता है इन दिस स्टोरी? जोडीज फादर. ये जोडी कौन है? वो जो बच्चा जो दिखाया आपको, his father has been bitten by a rattlesnake. Bitten means he is bitten, काटा है इसको. किसको काटा है? His father. हाँ, rattlesnake काटते हैं. एंड उसके कारण क्या होता है? टू सेव हिज फादर, उसको फादर को बचाने के लिए, he quickly kills a doe. ए DOE, डो क्यों होता है? डो होता है फीमेल डियर. फीमेल डियर मतलब जो हरिण असते ना, मादा हरिण. दे किल डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लिवर. उसका जो हार्ट होता है डो का एंड इट्स लिवर, दे यूज इट फॉर व्हाट? टू ड्रॉ आउट द पॉइजन फ्रॉम द बॉडी ऑफ जोडीज फादर. जोडी के फादर के बॉडी से वो खुद क्या बोलते हैं, पॉइजन निकालने के लिए. व्हाट डू दे यूज? दे यूज द हार्ट एंड लिवर ऑफ डो. उसको मार देते वो डो को. अब जैसे कि उसका हार्ट और लिवर लेना है, उसको मारना पड़ेगा डो को. अब मुझे बताओ, आपने भी देखा होगा, देयर आर होममेड रेमेडीज बहुत होती है. हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें होती है, हम अप्लाई करते हैं घर में. डॉक्टर के पास नहीं जाता है. क्या क्या मुझे कोई होम रेमेडीज के बारे में बता सकते हैं कि जिसने यहाँ पर एक रेमेडी बताई उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं था फॉरेस्ट के अंदर. तो वो क्या करता है, जोडी एंड हिज फादर, व्हाट डू? दे किल अ डो. डो को मारते हैं, दे यूजेस देयर लिवर, पॉइजन निकालने के लिए. ऐसे कुछ नुक्खे है क्या हमारे घर में जो आप यूज करते हैं? श्रेया, बताओ रेखा था, कौन से नुक्खे हम यूज करते हैं? होम रेमेडीज कौन सी यूज करते हैं हम, जैसे इसने यूज की? सर चोट लगने पर हम हल्दी लगाते हैं. या चोट लगने के बाद हम हल्दी लगाते हैं. वेरी गुड. और कौन सा है? सर सर्दी जुकाम होने पर हम तुलसी के पत्ते डालकर काढ़ा तुलसी के पत्ते खाते हैं, काढ़ा पीते हैं. अभी कोरोना हो इसलिए भी हम खाते हैं तुलसी के पत्ते, है कि नहीं? ओके. और कौन से नुक्के होते हैं घर में जो बताते हैं? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, दादी बताती है, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वो इलाज बताते हैं अपने आप को. काढ़ा पीते हैं सर. काढ़ा पीते हैं. ओके. और सर
कफ होने पर गर्म पानी में नमक डाल के उससे यस गरारे करते हैं। यस हाँ यस, सर। गरारे करते हैं। और क्या क्या करते हैं? आपके गांव में सर अलग बुखार अलग बुखार आया तो इस्तेमाल करते हैं किस चीज का? गुलवेल। हाँ, गुड़वेल का यूज करते हैं, करेक्ट है। हाँ सर। और सर वो पट्टी लगाते हैं सर पानी में भिगो सर पे कर। पिट्टी लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, प्याज का ज्यूस लगाते हैं, है ना? हाँ प्याज सर। का ज्यूस. और हाँ सर. एक जंगलामध्ये एक पाला असतो, त्याला आम्ही आमच्या गावात तर कंबरमोळी म्हणते बाबा त्याला. तुमच्या इकडे काय हो म्हणते? सर हो. हा, तो जखम लागली की तो आपण त्याला सर चोळून लावतो आहे की नाही? टोंगरमोळी मतलब हा? सर टोंगरमोडी म्हणतात. काय ते तुम्ही टोंगरमोळी टोंगरमोळी म्हणतात, म्हणतात. आमच्याकडे कंबरमोळी म्हणतात, है ना? आपण तो पाला वापरतो आहे की नाही? आणखीन बरेचसे असे सर गरम पाण्यात विक्स टाकून वाफ टाकून वाफ घेतो, बरोबर. पाण्यामध्ये विक्स किंवा झेंडू बाम टाकते. गरम पानी में डालकर Ah, so there are so many remedies, home remedies we use for different types of ailments, illness. So similar thing happens. क्या होता है? Jody and his father is in the jungle and suddenly his father is bitten by the rattlesnake. Now to save the life of his father, they were unable to take him to the hospital. So what do? They quickly kill one doe. एक डो को मारते हैं जंगल में, फीमेल डियर को, and they uses the heart and liver. तो उसका पॉइजन निकालने के लिए. और as Jody is kind-hearted boy, now the Jody is very kind-hearted man, and he puts up risk to save the little fawn who is left without his mother. Now क्या होता है? वो जो fawn है जिसको वो किल करते हैं, सॉरी जो डो है, उसके साथ उसका बच्चा भी होता है, एक्चुअली छोटा सा बच्चा होता है. तो उसकी मदर को तो वो मार डालते हैं, लेकिन उसके बच्चे को अकेला छोड़ देते जंगल में. and that baby is very small now. वो जो fawn is very very small. तो ये जब घर में वापस आते हैं तो जोडी थिंक्स अबाउट दैट fawn. उस fawn के बारे में सोचता है कि he thinks that we have killed his mother, now he must be hungry, he may be orphan, he may be what you call it, in a danger में हो सकता है, because the wild animals can kill it. There may be no food for him, he is without mother, so he start thinking like that. और उसको बचाने के लिए he puts up risk, he take the risk. वो अपनी फिर से एक रिस्क लेता है जोडी. कौन सी रिस्क लेता है? टू फाइंड द fawn, उस fawn को घर लाने की, उसको ढूंढकर. सो दिस इज द लेसन. इसी लेसन में यही सब दिया हुआ है कि वो कैसे जाता है, कैसा उसको ढूंढता है, और कैसे परमिशन लेता है अपने फादर और मदर से जाने की. सर और उसके बाद वो सर हाउ द yes. सर हाउ द हार्ट एंड लिवर ऑफ डो draw out the poison sir. So it is given in this lesson. We don't know the method. So इस लेसन में दिया है it is used. So we don't know how it is used, right? तो हमें नहीं पता कि उसको कैसा यूज किया जाता है, क्योंकि हमने भी पहली बार सुना है इसको. Anyway, तो आपको यूज नहीं करना है और जंगल में जाना भी नहीं है, और डो तो मिलेगा ही नहीं हमको. और वो अगर मारने को गए तो हमको we will be landed in a जेल में चले जाएंगे, क्योंकि Yes. we are not permitted to kill the wild animals, right? So Yes sir. तो don't try to use this remedy. अपनी छोटी छोटी घर की अच्छी ठीक है. Okay, anyway, जो का पार्ट है आगे. उसके बाद ये देखिए, this is a picture of fawn. Jody asks permission from his parents and rides with Will. He takes the permission of his father and his mother. दोनों की परमिशन लेता है, and he goes to the forest with whom? मिल नाम का एक व्यक्ति है उनके घर में, उनके साथ वो जाता है घोड़े पर बैठकर. लेकिन when he reach the forest में जाने के बाद वो अकेला ही ढूंढता है. ये मिल वापस चला जाता है. वो कहता है कि I will find the fawn myself. Jody finds adventure in the forest. There are many adventures in the forest में बहुत अकेला है वो, you can imagine. और जंगल is very thick. He is alone. He is searching the fawn, and and actually it had rained in the morning. बारिश भी हो चुके हैं वहां पर, and he also saw some वल्चर्स को देखता है. वल्चर्स आपको मालूम है, जो डिकेड एनिमल को खाता है, वो पक्षी जिसको हम गिधाड़ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वल्चर. Yes sir. और बिग कैट, लायन, टाइगर भी उसको उसके पग मार्क्स दिखते हैं. सो हिज स्टे इन द फॉरेस्ट इज वेरी रिस्की एंड वेरी एडवेंचरस. वो कैसे सब चीजों से वो मुकाबला करता है, इस लेसन में दिया हुआ है. और एट लास्ट
आफ्टर अ लॉन्ग टाइम he finds the fawn and bring his home. बहुत बार ढूंढने के बाद he finds the fawn को ढूंढता है and brings it at home. Okay, his father appreciate him, like appreciate, congratulates him, love him, and he brings it up, और उसको बड़ा करता है. ये सब उस नॉवेल में दिया है, डियरलिंग्स जो हमने पढ़ा है. इस लेसन में इतनी स्टोरी दी है कि वो अपने फादर से परमिशन कैसे लेता है, और मदर का रिएक्शन कैसा होता है वो जब बोलता है कि मैं फाउन को ढूंढने जा रहा हूँ. फिर उसके साथ उसके जो मिल वो क्या कहता है, और वहां जाने के बाद वो किस तरह से ढूंढता है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही फेसेस इन द फॉरेस्ट, एंड उसको वापस लाने में क्या क्या दिक्कतें होती है. बिकॉज सी, जोडी इज ऑल्सो यंग, वेरी स्मॉल, एंड फॉन इज वेरी स्मॉल, इट इज हेवी, वो हेवी है. और प्रॉब्लम क्या क्या आएंगे, वो द फॉन इज अनेबल टू वॉक, वो चल नहीं सकता, तो नेचुरली उसको कैरी करना है उसको, और छोटा सा बच्चा उसको कैरी करके जाएगा तो क्या क्या दिक्कतें आएगी, जंगल घना है. तो ये सब चीजें इस लेसन में दिया. और घर में लाने के बाद क्या होता है कि फॉन बेबी है और उसको मदर नहीं है टीच करने के लिए, उसको फीडिंग कैसे करना है, दूध कैसे पीना है, तो उसको सिखाना भी है, दूध पीना भी सिखाना है. और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि जोडी गरीब है, जोडी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति. तो जोडी मदर उसको पहले से बता के रखते, भैया तू ला उसको सही, फिर वी डोंट हैव एनीथिंग टू फीड हिम, हमें उसको फीड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है. तो जोडी क्या सैक्रिफाइस करता है कि कोई बात नहीं मदर, आई एम बिग नाउ, जो मेरे हिस्से का दूध है मैं उसको पिलाऊंगा. तो ये सैक्रिफाइस जोडी दिखाता है. और जोडी जब उसको मिल्क पिलाता है तो वो जो है उसको आदत नहीं है इस तरह का बाउल में मिल्क पीने का, तो ही इज अनेबल टू ड्रिंक. तो उसको कैसे सिखाता है, इट इज गिवन एवरीथिंग इन दिस लेसन. सो इट्स अ ब्यूटीफुल लेसन. और हम अभी इसको स्टार्ट करेंगे. तो ये आप देखिए, ये उस नॉवेल का उस पे पिक्चर बनी है, इसके अंदर उसका जो नाम दिया है, यहाँ तो हमारे लेसन में उसने फ्लैग क्या नाम दिया है, फॉन का हम यूज करते हैं. फॉन मतलब बच्चा, लेकिन उसका रियल नेम है फ्लैग. उस नॉवेल में जोडी एंड फ्लैग, क्योंकि इस स्टोरी में क्या बताया है, उसको घर में लाना है, सिर्फ घर में लाना है, घर में लेके आता है फॉन को, लेकिन उसका बाद ही गिव्स इट अ नेम, उसको नेम भी दिया जाता है. लेकिन जो पूरा नॉवेल पढ़ेंगे उसमें यू विल फाइंड दैट ही हैज नेम्ड इट एज अ फ्लैग. तो ये है जोडी एंड फ्लैग, उस पिक्चर का एक पिक्चर है नॉवेल्स का. ओके, ये यहाँ पर देखिए जोडी बॉक्स्टर, और बॉक्स्टर इज द सरनेम, जोडी का फुल नेम है बॉक्स्टर, जोडी बॉक्स्टर, एंड इज पेट डियर फ्लैग. फॉर अ ईयर द टू आर इनसेपरेबल, दो साथ में रहते, शेयरिंग एडवेंचर्स एंड हार्डशिप एज दे ग्रो. बट व्हेन फ्लैग बिगिंस टू ईट फैमिलीज क्रॉप्स एंड मस्ट बी शॉट, जोडी पैनिक्स एंड रन अवे फ्रॉम होम. ये स्टोरी हमारे लेसन की नहीं है, ये नॉवेल्स की स्टोरी है. तो हमारी इसमें नॉवेल में इतना ही बताया है लेसन में कि उसको जंगल से किस तरह से लाए. उसके बाद क्या होता है, इस पिक्चर में थोड़ा सा हिंट दिया है मैंने आपको, ताकि आप वो नॉवेल जो है वो पढ़े और आपको और इसमें मजा आएगा. देखिए जोडी बॉक्स्टर क्या करता है, उसको साथ में पालता है और दोनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं, एडवेंचर्स करते हैं साथ में, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हैं जैसे जैसे बढ़ते हैं. लेकिन बाद में क्या होता है, व्हेन फ्लैग मींस दे फॉन बिगिंस टू ईट द फैमिलीज क्रॉप, अब द फैमिली का क्रॉप लगाया उन्होंने, फसल लगाई है, तो ये खाना शुरू कर देता है. तो क्या करता है, दे डिसाइड टू शॉट हिम, किल हिम, फैमिली मेंबर इसको मार डालेंगे, अभी ये हमको तकलीफ दे रहा है. जोडी पैनिक, जोडी डर जाता है कि दे आर गोइंग टू किल माय फ्लैग, सो ही रन्स अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाता है. तो ये स्टोरी है उस नॉवेल की, ईयरलिंग, जो आपको पढ़ना है इसके बाद. ओके, तो ये सब हमारे नॉवेल में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी के लिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका ये देखिए. अभी ये रैटल स्नेक हमने पहले ही दिखाया है, ए फादर इज बिटन बाय रैटल स्नेक. और क्या हो गया रे, खत्म हो गया मेरा लेसन, वेट, खत्म तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ से आएगा. अब देखिए हमारी ये स्टोरी है, our story is in the आपने देखा होगा, अभी हमारी स्टोरी जो है, पूरी स्टोरी आपने क्या करना है, मैंने आपको कल इसीलिए कहा था कि स्टोरी पढ़ो,
क्योंकि ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे जो दिया है वही है टेक्स्ट बुक में जो आपको लिखा हुआ है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, ये यहाँ पर लेकिन डायलॉग फॉर्म में है, तो ये ज्यादा बेटर है अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन कुछ जैसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है टेक्स्ट बुक से पढ़नी है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, आवर टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, तो वी विल मीट टुमारो, कल मिलेंगे और कल इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले चीज क्या करना है, आपको ये स्टोरी पढ़ना है अच्छी तरह से। कैन यू, विल यू रीड Yes, द sir. लेसन? हाँ, तो और कल से Yes, क्या sir. करना है आपको बेटा, कल से क्या करना है, यू विल कीप योर टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना है। मैं बोलूंगा एक एक को पढ़ने के लिए कहूंगा, एक एक पैराग्राफ जो इसमें जो दिया है लास्ट सेंटेंस तक, मैं कहूंगा कि यहां तक पढ़ो उसको। I will call you by name, you will read the paragraph and then we will discuss with the help of these pictures. Okay, pictures के हेल्प से हम इस लेसन को अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरी चीज जो आपने अभी तक लास्ट लेसन हमारा कौन सा था रे जो हमने पढ़ा, what was the name of the lesson? The open window. The Open window. मैंने क्वेश्चन आंसर भेजे थे, उसके भेजे थे ना, तो आप लोगों ने लिखे होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो 2 दिन में उसको लिख लेना है सभी क्वेश्चन आंसर, और उसको बाद में आपको व्हाट्सएप पर उसको सेंड करना है, ठीक है? Okay, sir. वो आपके मार्क्स देना है, मार्क्स उसमें 5 मार्क्स है उसके लिए, तो यू विल राइट योर नेम एंड सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप। ओके चिल्ड्रन, tomorrow again we will meet at 12 o'clock and we will start the lesson. You read it properly today. इसको अच्छी तरह से पढ़ लो बेटा। ओके हेलो सर। ओके बेटा, हेलो, आवाज येत आहे का? हो sir. ओके, सी यू टुमारो देन। ओके, बाय See you बाय। Bye, sir.